بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب یہ جب حیات تھے تو یہ باتوں باتوں میں اس چیز کی وضاحت فرما گئے تھے کہ یہ جمہوری نظام جو ہے یہ غیر اسلامی نظام تو ہے ہی، مگر اس نظام میں انصاف نہیں ہے، اس نظام میں خیر نہیں ہے، اس نظام میں برکت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کیسے ممکن ہے نا، غیر اسلامی نظام سے اسلام والی برکتیں حاصل ہو نہیں سکتا نا۔ تو مجھے حیرت ہے، وہ اشارہ بھی دے گئے ہیں، سارا کچھ بتا بھی گئے ہیں، مگر یہ جماعت اب جب یہ بن چکی ہے تو اب ظاہر ہے اب یہ بند گلی میں بیچارے آ گئے ہیں سارے۔ اب یا تو اس نظام کو چھوڑیں اور اس نظام کے اوپر اپنے علمی دلائل کو یکجا کر کے تو اس کے اوپر غیر اسلامی ہونے کا یہ جب دعویٰ کریں گے تو پھر قوم کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ تو غیر اسلامی، یہ غیر مطلب سارا اسلام کے خلاف سسٹم تیار ہوا ہے، تو ہم لوگ کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے مطلب لوگوں کی جانیں ضائع کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں۔ عارضی شعور جانتا ہے کہ ایک پولنگ بوتھ کے اوسطاً 12 یا 1500 ووٹ ہوتے ہیں، جنہیں گنتی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے درکار ہیں، لیکن 8 گھنٹے تک 12 سے 1500 ووٹ کی گنتی نہ ہونا، کیا یہ شفاف الیکشن پر سوالیہ نشان نہیں؟ کیا قوم کا آئندہ الیکشن سے اعتماد اٹھنے کی یہ وجہ نہیں بن جائے گی؟ کیا دنیا کے سامنے بحیثیت قوم ہم کیا منہ دکھائیں گے اور کس منہ سے ہم کہیں گے کہ ہم آزاد قوم ہیں اور ہمارے الیکشن آزادانہ ہوتے ہیں؟ ساتھیوں، یہاں پر ذرا بات کو سمجھیے گا۔ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کس کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم لوگ شفاف الیکشن بھی نہیں کروا سکتے۔ مطلب سوچیں، غور کریں کہ بابا جی کے پیش نظر کوئی اور دنیا ہے جن کو وہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا سسٹم جو ہے وہ کتنا مطلب یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ فراڈیا سسٹم ہے، یا مطلب اس کو کہہ لیجئے کہ مطلب دھوکہ دہی پہ اور دھونس دھاندلی، یہ کچھ بھی کہہ لیں اس کو، تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ یار دیکھیں، یار خود سوچیں کتنے بڑے عالم دین ہیں بابا جی، اور ان کو اسلام کے سسٹم کا ہی نہیں پتہ کہ اسلام کسی سے اپنی مطلب جسٹیفیکیشن نہیں کرواتا، کسی سے اپنی وہ کسی سے ڈائریکشن نہیں لیتا، اور نہ وہ کسی سے سند لیتا ہے کہ یار دیکھیں اپنا تو مجھے پاس کرو، میں دیکھو کتنا اچھا ہوں، کتنا ٹھیک ہوں۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہو رہا ہے یہ تو پھر غیر اسلامی ہے، اور غیر اسلامی سسٹم ہی غیروں کے سامنے رکھا جائے گا نا کہ یار دیکھو ہم لوگ مطلب غیر اسلامی سسٹم چلا رہے ہیں اور وہ بھی ٹھیک سے نہیں چلا رہے۔ تو یار یہ مطلب دیکھیں بابا جی اتنے بڑے یار عالم دین، حافظ قرآن، سارا کچھ، لیکن یار یہ جمہوری نظام میں آ کر ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اب غور کریں نا، بابا جی کتنے بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، مگر اس جمہوری نظام کے اندر آ کے اقبال کیا فرماتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا ہے نا۔ اور پھر ایک جگہ اقبال فرماتے ہیں، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائیں خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں ساتھ، نہایت تیز ہے یورپ کے رندے۔ تو یار یہ سارا کچھ بابا جی نے پڑھا ہوا تھا، حافظ تھے نا، علامہ اقبال کو بھی انہوں نے پڑھا، علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے ان کو تعارف کروایا علامہ اقبال کا، تو اقبال کو پڑھا تو ان کو بڑی متاثر ہوئے کہ یار یہ تو جمہوری نظام کے سخت خلاف ہیں، سسٹم کے خلاف ہیں، مگر بابا جی نے ان اشعار سے رہنمائی نہیں لی ہے نا، اور کود پڑے۔ اور اب خود سوچیں کہ اب یہ سارا کچھ مانتے ہیں، جانتے، بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ غلط ہے، اور پھر بھی اب یہ مان کر کے بھی سارا کچھ تسلیم کر کے بھی ان کی جماعت جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے، مگر کوئی ان میں کوئی دانشور، کوئی اہل علم محقق پیدا ہی نہیں ہو رہا جو کہے کہ ہاں یار یہ نظام غلط تھا۔ مگر اب بابا جی چونکہ ہاتھ پکڑ کے ان کو اس دلدل میں چھوڑ گئے ہیں، تو اب یہ دلدل میں مرنے کو تو تیار ہیں، نکلنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ کسی قانون کے تحت پولنگ ایجنٹ کو فارم، کس قانون کے تحت پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 اور 46 فراہم نہیں کیے گئے، اور کس ضابطے کے تحت گنتی کے وقت بلڈنگ میں موجود پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا گیا؟ ہمارا یہ واضح اعلان تمام دین و ملک دشمن عناصر سن لیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور اس کا سیاسی ونگ تحریک لبیک پاکستان
आलम कुफर के जमाल परवेज जो है ना वो दावत देने वाले मीर भी कितना सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेता है, तो जिनकी वजह से आज ये सारे हालात पैदा हुए, हम उनके साथ बैठकर फिर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? हाँ जी, पहले तो वो खुद जो उन्होंने काम किए हैं, जो आप कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो पीछे 30 साल चला गया है, तो खत्म नबुव्वत पर हमले के बाद आलम इस्लाम और मुसलमान कहाँ तक पीछे चले गए थे, वो इस बात का पहले जवाब दें, तो फिर उसके बाद कोई बात होगी। इनसे बात ऐसे नहीं हो सकती, ये सारे एक ही हैं, दुश्मनी इस्लाम के अंदर ये सारे एक ही हैं। अच्छा बाबा जी, अब यहाँ पर जमहूरी जितने भी लीडरान हैं उनको मुखातब करके क्या फरमा रहे हैं कि ये सारे एक ही हैं। अच्छा, जो सारे एक हैं वो जिस सिस्टम के अंदर सारे एक हैं, बाबा जी भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, तो ये दोरंगी ना हुई। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो अब जिस जमहूरियत के ऊपर अल्लामा इकबाल ने भी लानत भेजी है, और भी बड़े बड़े जो उलमाए हक़ हैं वो भी इससे बेजार हैं, और इसके गैर इस्लामी होने पे उन्होंने कुरान और हदीस से दलाइल दिए हुए हैं, तो बाबा जी भी उन्हीं से निकल करके अब जमहूरियत में आए हैं। तो अब ये बाबा जी जिनको गंदा कह रहे हैं या जिनको कह रहे हैं वो सारे एक हैं, तो बाबा जी भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। तो अब बताएं क्या किया जाए? तो बात यही है कि बाबा जी अब जिस चीज़ का मतलब अपनी ज़िंदगी में रोना रोते रहे कि यार ये देखें धांधली हुई, धांधला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो भाई ये सिस्टम ही मतलब गैर इस्लामी है, और गैर इस्लामी सिस्टम से इस्लाम की बरकतें कैसे हासिल कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता यार। एक सादा सी बात समझ में आती है, चले बाबा जी को छोड़ दें, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ ना कि बाबा जी एक हों और एक तरफ चूड़ा हो, और बाबा जी का वोट भी एक, चूड़े का वोट भी एक, दो चूड़े हो जाए तो बाबा जी की छुट्टी। चले बाबा जी की जगह आप चीफ़ जस्टिस ले लें, ठीक है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ले लें, या इलेक्शन कमिश्नर का जो सबसे बड़ा हेड है वो ले लें। यार इन सब का आप मतलब कर लें, इन तीन लोग हैं ना, यानी कि चीफ़ जस्टिस लगा लें, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा लें, और ये इलेक्शन कमीशन का जो बड़ा है वो लगा लें, और इन तीनों का वोट एक एक, 3 वोट ये हो गए। और इनके दफ्तरों के बाहर जो चपड़ासी बैठे हुए हैं कुर्सी मतलब डाल करके जो इनको मतलब मिलवाते हैं किसी बंदों से, उनके भी वोट एक। यानी कि चीफ़ जस्टिस सबसे बड़ा जो है मतलब मुल्क का इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा, उसका वोट, कितनी इल्मी शख्सियत है ना वो दुनियावी लिहाज से, तो उसका वोट, और उसके बाहर बैठा चपड़ासी उसका वोट एक। यानी कि अल्लाह अकबर, उसकी अकल और बाहर चपड़ासी की अकल एक है। तो फिर चीफ़ जस्टिस का तो फिर मतलब अपना जो ओहदा है, जो मुकाम मर्तबा है, वो तो फोत हो जाता है, कत्ल हो जाता है, क्योंकि वो उसकी तो वैल्यू एक चपड़ासी के बराबर है ना। तो इसी तरह खादिम रिजवी साहब ने जो सिस्टम को कबूल कर लिया, यार समझ से बाहर है। अब ये तो पूरी उम्मत मुसलमान, ओहो, मतलब हम तो यार पाकिस्तान की ही बात करेंगे जहाँ रहते हैं, यहाँ पर पूरे मुसलमान जो हैं जो मतलब इतने बड़े पैमाने पे हैं, तो इन उलमा ने बेड़ा गर्क किया ना यार, है ना। कौम को हक़ाइक़ बताएं, इतने मतलब साजिशों से निकालें, जब ये ख़ुद उस मतलब मियाँ नजार भी छीले गए हैं साथ। वो इकबाल क्या फरमाते हैं कि मियाँ नजार भी छीले गए हैं साथ, नहायत तेज़ हैं यूरोप के रंदे। अब बाबा जी भी साथ बेचारे छीले गए इसी निज़ाम के अंदर जब आए हैं, तो अब चीख रहे हैं, चला रहे हैं, बता रहे हैं, मगर ये तो चले गए दुनिया से, साथ पीछे इनकी जो वरसा हैं जो, और मुझे समझ नहीं आती यार क्या बनेगा ये, क्यों कौम को बर्बाद कर रहे हैं यार, खुदा के लिए यार। आज भी मुफ्ती अरब व अजम फजल अहमद चिश्ती मद्दसुल्लाह अलैह मौजूद हैं, उलमाए हक़ मौजूद हैं, उनके पास जाएं और जा कर के दो जानों बैठ कर के तो नफाज इस्लाम किस तरह से होगा उसके लिए उनसे मुशावरत करें, ताकि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएँ। इस तरह ये कौम सारी बर्बाद हो रही है और अब करते जा रहे हैं।
इनमें से कोई भी नहीं था जो कौमी असम्बली के अंदर खत्म नबूवत के मसले में बोलता। सारे वहाँ मुत्तहिद और मुत्तफिक थे। अब कोई मफादात का मसला है तो फिर इनके अंदर जुदाई हुई है, फिर ये अपने मफादात के लिए हो जाएंगे। हमारा जो है वो मफादात का मसला नहीं है, नाम कोई सियासी मसला है। हमारा तो खालिसतन दीनी मसला है, और हमारा दीन और सियासत जुदा जुदा नहीं है। जलाल पातशाही हो या जमहूरी तमाशा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हम तो वो सियासत कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर अल्लामा इकबाल का बाबा जी ने शेर पढ़ा है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो यार अल्लाह अकबर, भाई आप लोग जिस सिस्टम का हिस्सा हैं जमहूरी निज़ाम के, तो बाबा जी कह रहे हैं हमारा तो इस सियासत से तल्लुक़ नहीं है, जुदा हो दीन सियासत से, तो हम तो इस्लाम वाली सियासत की बात कर रहे हैं। भाई आप इस सियासत का हिस्सा हैं, अगर आप इस सियासत का हिस्सा नहीं हैं तो बताएं, आपने इस सियासत के अंदर हिस्सा अगर नहीं बने हैं तो फिर रजिस्टर्ड कहाँ की हुई आपने जमात? आपने जो तहरीक लब्बैक है ये रजिस्टर्ड कहाँ करवाई है? ये जमहूरी निज़ाम में नहीं हुई हुई, या कोई आपने अपना निफाज इस्लाम का कोई अपना मतलब रियासत बनाकर, या कोई अपनी अलग से मतलब इसके मुकाबले में मतलब आपने जमात बनाई हुई है, और आपने ना अपनी जमात रजिस्टर्ड करवाई है, ना आपने उनसे मतलब ये इंतखाबी निशान लिया है, ना उनके कवानीन के पाबंद हैं, ना मतलब उनके सिस्टम को मानते हैं, ना आप इलेक्शन लड़ा, ना वोटों में आए, मतलब उनके निज़ामों के हट के कोई आपने अपना निज़ाम बनाया हुआ है, तो फिर तो समझ में आता है ना कि जी हमारा अपना है, जी हम तो इस्लामी सियासत की बात कर रहे हैं। भाई आप इस्लामी सियासत की बात नहीं कर सकते क्योंकि आप जमहूरी सियासत के अंदर हैं। जमहूरियत जो सियासी निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, उस सियासी निज़ाम का नाम है डेमोक्रेसी, जमहूरियत। तो अब जमहूरी निज़ाम से हटकर अगर आपने सियासत कर रहे हैं तो वो हमें साबित करें, बताएं कहाँ पर हैं। भाई आप इस इलेक्शन मतलब इस सिस्टम से ही आप ऊपर आने के लिए तो इसके अंदर आए हैं, इससे हटकर आप ना मुल्क के अंदर कुछ कर सकते हैं और ना आपको करने की इजाज़त है। तो इसलिए आपने इस सिस्टम को माना है, इसके ताबे हैं, और इसके ताबे रह कर के ही आपने करना है। ये जितने मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, मतलब जितने भी लोग हैं अक़लीतें, उन सब के वोट और आपके वोट बराबर हैं, ठीक है ना। जितने इस सिस्टम के अंदर है ना, अल्लामा इकबाल ने देखा यार क्या खूबसूरत बात फरमाई है। बाबा जी को कोई बताए यार ये जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है यार, तोला नहीं जाता। ओहो यार, इतने मुझे तो समझ नहीं आती ये बात, हम जैसे जाहल लोगों की जहन में आ गई है, तो ये जो साहिब इल्म लोग हैं इनके जहनों में ये बातें क्यों नहीं आ रही? ये कैसे इन्होंने कुफर के निज़ाम का वो कबूल करके तो इस्लाम लाने की बात करते हैं। यार अपने ही पाँव पे चला करती हैं ज़िंदगी। इस्लाम को काफरों की बैसाखी का सहारे की ज़रूरत नहीं है। हमारा इस्लाम एक ताकत रखता है। अल्लाह ताला सुबहान अल्लाह ताला वो जब चाहेगा अपने दीन इस्लाम के निफाज की, मतलब शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज की अल्लाह तबारक ताला कोई सबील फरमाएगा तो वो ख़ुद अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में फरमा देगा। आप लोग तो सच बोले, हक़ाइक़ का साथ दें, है ना, कौम को बताएं, मगर आप लोग बजाय के कौम को बताते हक़ाइक़, आप ख़ुद इस गलाज़त में उतर आए हैं। और अब आपके जो पीछे रफ़क़ा हैं वो भी सारे लंबी लंबी कतारों में वोट डाल रहे हैं। यार खुदा के लिए कोई इनको समझाए, बताए कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्बाद ना करें, तबाह ना करें, कुछ ख्याल कर लें यार। अल्लाह तबारक तआला हम पे रहमत फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाया सल्ली